Okay, so guys, let us start with our introductory session for CM1. So we have gathered here to discuss what is CM1 all about, what we are going to study in CM1 throughout our April 2022 session, and which society to prefer, how to tackle this exam, and how this exam will be holding in the online format for April 2022 diet. So all these questions I will try to cover in this session before moving to the chapter. So you can keep on asking whatever questions you are having throughout this session and don't feel hesitated to ask anything. So this is my request to you all. So do participate throughout this session, and whatever doubts you are having with respect to CM1, with respect to exam pattern, with respect to anything, do ask me from time to time. Okay guys, before I start, let me just take you through what is CM1 all about and what is the exam pattern first. Then I will take you through the index. So just give me 2 seconds. I will just share my screen with you all. Okay, so guys, the subject CM1. So you all know what is the name of CM1. CM1 name is Actuarial Mathematics. So in this subject, you are basically going to study all about the life insurance things, the finance thing, all the things related to cash flows, interest rate, the accumulation, the loan schedules, the project appraisal, that we are going to study throughout our sessions, but also that I will explain you in the index session. So before that, let me just take you through the exam pattern first. So guys, CM1 is the combination of 2 subjects. Earlier there used to be CT1 and CT5. सो पहले 2 सब्जेक्ट्स होते थे. 2019 में हमारे पास नया करिकुलम आया था CM1 का, विच कंबाइंड द अर्लियर 2 सब्जेक्ट्स ऑफ CT1 CT5 इनटू अ सिंगल सब्जेक्ट CM1. ऐसा नहीं था सिर्फ CT1 CT5, देयर वाज वन मोर थिंग दैट वाज कंबाइंड इनटू इट, वाज द एक्सेल पार्ट. सो अर्लियर पहले हमारा 2019 से पहले कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पूछी जाती थी एक्चुअल में. अब हमारे हर एक सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जुड़ गई, स्पेशली 4 सब्जेक्ट्स CS1 CS2 CM1 CM2. सो फॉर CM पेपर्स Excel has been combined with the theory part, and for CS papers R has been combined with the theory part. So here we will be discussing what was CT1, what was CT5 guys. CT1 में हम सारा कैश फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. CT5 इज ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस थिंग. सो देयर विल बी certain products, we will try to value those products, we will try to learn how life insurance deals in these products. So that we will discuss later on. Now IFO is saying the weightage for CT1 part of CM1 will lie between 35 to 40%, and weightage for CT5 part lies between 50 to 55%. So this is the range in which the weightage lies between these 2 subjects. There is one more chapters, principle of actuarial modeling, that is chapter 2, that has been taken from earlier CT4 subject. CT4 से चैप्टर लिया गया. दिस इज जस्ट अ थ्योरी चैप्टर. इसको हम एग्जाम से जस्ट पहले एक बार गो थ्रू कर लेंगे. इसमें से डायरेक्टली हमारा थ्योरी पार्ट टेस्ट होगा. सो यू कैन एक्सपेक्ट if questions come from this chapter, it will not come on maximum average of 5 marks. 5 marks का आप उस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज चैप्टर 2. बट अगर नहीं भी आता तो वो 5 मार्क्स हम यहाँ पे कहीं ना कहीं केटर कर लेंगे. बट मैक्सिमम 5 मार्क्स से ऊपर पूछना उस चैप्टर में से थोड़ा ट्रिकी होगा. तो बेसिकली CT1 पार्ट क्या होगा, 35 to 40% वेटेज के साथ. CT5 पार्ट क्या होगा, 50 to 55% वेटेज के साथ. अब आप क्या होगा, ठीक है ये तो आपने बता दिया 35 to 40%, 50 to 55%. अब इनको चैप्टर्स कौन से बिलोंग करते हैं. सो गाइस CT1 को बिलोंग करते हैं चैप्टर्स 3 to 14, CT5 को बिलोंग करते हैं चैप्टर 15 to 28. अभी हम इंडेक्स देखेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा. तो चैप्टर 3 से 14 जो चैप्टर्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो CT1 पार्ट से लिए गए हैं, और 15 to 28 वो कहाँ से लिए गए हैं, वो CT5 पार्ट से लिए गए हैं. अब ऐसा नहीं है पूरा का पूरा CT1 और CT5 उठ के आ गया. देयर वर फ्यू चैप्टर्स दैट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, लेकिन मोटा मोटा 80 to 90% ऑफ द कोर्स ऑफ CT1 एंड CT5 हैज बीन कंबाइंड इन द CM1 पार्ट. एनी डाउट्स स्टिल हियर? सो गाइस CM1 अगेन आई एम रिपीटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CT1 एंड CT5. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, थ्रू आउट योर एग्जाम आपको ये चीज़ क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको
सेशंस में बहुत बार रिपीट करूंगा कि टुडे वी आर स्टडिंग CT1 पार्ट ऑफ CM1, CT5 पार्ट ऑफ CM1, वहां आपको रेफरेंस करने में दिक्कत ना, या फिर जब आप 2018 से पहले पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, हम पास्ट पेपर्स तो प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जब आपको चैप्टर 14 तक प्रैक्टिस करनी होगी तब आप कौन से पास्ट पेपर्स रेफर करने वाले हो, CT1 वाले, और जब आप चैप्टर 15 के बाद प्रैक्टिस करोगे तब आप कौन से पास्ट पेपर्स रेफर करोगे, CT5 वाले। तो इसलिए इसकी थोड़ी सी यूटिलिटी है, बट आज की टर्म्स में इनका कोई भी आपको कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलेगा न्यू एग्जाम्स में। बस हमें रेफरेंस देने के लिए, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने के लिए पता होना चाहिए कि ये जो हमारा CM1 का सिलेबस बना था वो कौन से 2 सब्जेक्ट से बना था। दैट्स व्हाई आई हैव रिपीटेड ऑल दिस। Now let me just quickly explain you what will be the exam pattern. Okay, so what was I trying to say is CM1 के अंदर हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, CM1A and CM1B. So CM1A and CM1B, why there are 2 different papers? So CM1A हमारा टेस्ट करेगा थ्योरी पोर्शन और CM1B हमारा टेस्ट करेगा प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए तो अभी हमने देखा कि एक्सेल में हमारा वो टेस्ट होगा, तो जो भी 27 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें जो हम थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे वो हमें टेस्ट होगा CM1A में। दैट मीन्स जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर जो हमें कमेंटिंग पार्ट आएगा वो सारा हमारा टेस्ट होगा CM1A में, और उसी का रेप्लिका जो हमें एक्सेल पार्ट में करके दिखाना पड़ेगा वो हमारा टेस्ट होगा अंडर CM1B। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि CM1A और CM1B किस फॉर्मेट में होगा। तो गाइज बिफोर कोविड CM1B हमारा होम बेस्ड एग्जाम होता था कि हमें पेपर आता था और हमें घर पे बैठ के उसको एक्सेल में देना होता था, और CM1A के लिए हमें सेंटर पे जाना पड़ता था। बट ड्यू टू कोविड दीज बोथ एग्जाम्स आर नाउ होम बेस्ड एग्जाम। तो अप्रैल 2022 के लिए भी ये होम बेस्ड एग्जाम ही रहने वाले हैं। सो दिस CM1A इज अ 3 hour 15 minutes एग्जाम एंड दिस CM1B इज 1 hour 45 minutes एग्जाम। ओवर एंड अबव दिस आपको 5 मिनट्स प्रिंटिंग टाइम भी मिलेगा, हाफ आवर अपलोडिंग टाइम भी मिलेगा, बट एग्जाम टाइम आपका क्या रहने वाला है, 3 hour 15 minutes फॉर CM1A एंड 1 hour 45 minutes फॉर CM1B। नाउ you will say what is the weightage of these 2 exams? Are the weightage equal? No, not at all. So CM1A weightage is 70%, CM1B weightage is 30%. So एग्जाम्स दोनों 100 मार्क्स के होने वाले हैं गाइस। ये वाला एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा, ये वाला एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा, बट आउट ऑफ दोज 100 मार्क्स उसकी वेटेज कितनी रहने वाली है, 30%, और CM1A का जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसकी वेटेज कितनी रहने वाली है, 70%। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज स्टूडेंट X ने एक CM1 एग्जाम फिल करा, उसने दोनों एग्जाम्स में कितना कितना स्कोर करा। सपोज CM1A में उसने स्कोर करा 70, CM1B में उसने स्कोर करा 50। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो अब 70 का 70% कितना हुआ, 49, प्लस 50 का 30% कितना हुआ, 15। सो इन टोटल जो उसको फाइनल मार्क्स मिलेंगे दैट विल बी दिस विच विल कम्स आउट टू बी 64। नाउ गाइस अगर हमारी 65 पासिंग होगी, अगर समहाउ उस डाइट के लिए IFOA ने बोला हमारी 65 पासिंग है, सो दैट स्टूडेंट X विल बी फेल्ड बाय 1 mark। So guys, this is just the introductory class. That's why I'm explaining you all these things. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लास में कि सर कैसे पासिंग होगा, क्या रहेगा, तो इसलिए मैं अभी सब कुछ डिस्कस करके चल रहा हूँ। कहीं भी कुछ भी डाउट हो कीप ऑन आस्किंग मी। सो मेरी ये हैबिट रहती है बिफोर वी स्टार्ट एनी पर्टिकुलर एग्जाम और बिफोर वी स्टार्ट एनी न्यू स्ट्रीम। सो आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द कोर्स एंड आप लोग 12th से आए हो, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे। सो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस फ्रॉम द स्क्रैच। So guys, understood? Okay. One question is what is the passing percentage? I will come to this. Don't worry. So guys, same pattern II का रहेगा, same pattern IFOA का रहेगा। एक डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। IFOA ने बोला है आफ्टर कोविड दैट माई एग्जाम्स आर ओपन बुक नाउ। सो अब IFOA के एग्जाम्स ओपन बुक है, तो आप लोग एग्जाम टाइम पे बुक्स ओपन कर सकते हो। IFOA is cool with that. But for II exams, you have to keep your cameras on, you have to keep your mic on while giving your II exams. तो वो open book नहीं है, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। वो सेम जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देते थे वैसे ही देना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अभी आप घर बैठ के दे रहे हो लेकिन आप कोई भी बुक ओपन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, एक्चुअल टेबल्स आप यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है। बट IFOA बोलता है आप कुछ भी यूज़ करो, आपका कोई कैमरा ऑन नहीं होगा, आपका कोई माइक ऑन नहीं होगा। आपको चलो ठीक है फिर तो IFOA से ईजी है, बट
वो सारी चीज़ें वो अपने एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम पेपर में कंसिडर करके ही एग्जाम बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। सो डोंट वरी, मेरे पास ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं सर, पहले हम लिख के आते थे और अब हमें टाइप करना है मैथ्स को, तो क्या डिफरेंस नहीं आएगा टाइम में? सो गाइस, बोथ IFO एंड II हैज टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन। ऑब्वियसली वो उसी टाइप का अगर सेम एग्जाम जो आप रिटन पैटर्न में पढ़ रहे थे, उसी टाइप का सेम एग्जाम अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में पूछेगा, इट विल बी इम्पॉसिबल टू आंसर दैट पेपर। सो उसको केटर करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, कुछ कुछ उन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ाई है, सो दे हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हम कैसे टारगेट करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे ऑनलाइन फॉर्मेट के लिए, वो हम थ्रू आउट द सेशन सीखेंगे। तो हमें आंसर्स लिखने को होंगे थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, हमें इस एग्जाम के लिए आंसर लिखने होंगे MS वर्ड के लिए, और इसके लिए हमें यूज करना है MS एक्सेल। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? एनी डाउट स्टिल हियर? नो डाउट्स? शैल आई कंटिन्यू? ओके, नेक्स्ट बहुत अच्छा डाउट आता है कि सर ठीक है, आपने बताया 2 सोसाइटीज़ है, IFOA एंड II, तो हम कौन सी सोसाइटी से एग्जाम प्लान करें? गाइस इट इज़ टोटली अप टू यू। मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होगा, रेस्ट अप टू यू, आप किस सोसाइटी से प्लान करना चाहते हो। तो दोनों का करिकुलम बिल्कुल सेम है, दोनों का स्टडी मटेरियल बिल्कुल सेम है, तो ऐसे जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन IFO इज द पेरेंट सोसाइटी, तो इनका एक स्टैंडर्ड है एग्जाम का, रिजल्ट पुल आउट करने का एक स्टैंडर्ड है। तो क्या रहता है इनका, इनकी पासिंग हमेशा 55 से 65 मार्क्स के बीच में रहेगी। अच्छा, ये गोल्डन क्वेश्चन रहता है हमेशा कि सर पासिंग क्या रहेगी। गाइस बहुत ट्रिकी एग्जाम दिया और बच्चों ने बहुत बुरा परफॉर्म करा, तो इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली, और अगर बहुत इजी एग्जाम आया और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो कट ऑफ विल लाई बिटवीन दीज 2 नंबर्स, मिनिमम 55, मैक्सिमम 65। II एज सच कोई डिस्क्लोज नहीं करता, बट इनका भी आप मान सकते हो इसी के थ्रू रहेगा, तो यू कैन जस्ट टेक अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स के अराउंड इनका भी पासिंग रहेगा। अब आते हैं कितने बच्चे पास करते हैं। गाइस पास ट्रेंड्स यही कहते हैं, IFOA का रिजल्ट रहता है 40 to 60% के बीच में। मीन्स इफ 1000 स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम्स, 400 to 600 स्टूडेंट्स विल पास द एग्जाम। बट अगेन II का सैम्पल स्पेस थोड़ा सा कम है, IFO इज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज सोसाइटी एंड II की अभी रिकॉग्निशन कुछ ही कंट्रीज में है, तो इनका सैम्पल साइज छोटा है, सो अराउंड 100-200 स्टूडेंट्स गिव द एग्जाम। तो एक स्टैंडर्ड इनका कोई परसेंटेज नहीं है, हो सकता है किसी डाइट में इनका 5% भी रिजल्ट आए, हो सकता है 50% भी आए, बट मोर देन 50% आप II में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सो द सेकेंड डिफरेंस इज दिस। थर्ड डिफरेंस, IFOA का फीस कितनी रहती है? सो इफ यू आर गिविंग एज अ मेंबर देन फीस विल बी 180 pounds, and if you are giving as a non-member, fees will be somewhere around 200 pounds. I'm not that sure, you can check on the IFOA website. और II का क्या रहता है? II ने बोल रखा है कि अगर आप हमारा एग्जाम दे रहे हो देन इट इज़ कंपल्सरी टू बाय द स्टडी मटेरियल। तो अगर आपको II से एग्जाम देना, पहले आपको एक स्टडी मटेरियल बाय करना पड़ेगा और फिर आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, तो जिसकी टोटल कॉस्ट अराउंड बैठेगी 17,000 अराउंड। तो गाइस चाहे आप IFOA से दो चाहे II से दो, फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों सोसाइटीज़ की, क्योंकि देखो 180 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी समवेयर अराउंड 18,000। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की IFOA और II की दोनों की फीस ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में आपको सेम फीस पे करनी है अंडर IFOA, लेकिन II में सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब आपको दोबारा से स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना, अब आपको सिर्फ एग्जाम फीस पे करनी। तो सेकेंड डाइट ऑनवर्ड्स II की फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी कम हो जाती है। बट आप ये सोचना ही नहीं है कि हम सेकेंड अटेम्प्ट तक पहुंचेंगे। अगर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग 7 to 8 गुड मंथ्स, देन देयर इज नो वे दैट देयर विल बी अ सेकेंड अटेम्प्ट। हम हर एग्जाम फर्स्ट डाइट टारगेट करते चलेंगे और टिल आवर ग्रेजुएशन वी विल ट्राई टू क्लियर एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्स। हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। वी हैव मेनी स्टूडेंट्स हु हैव इवन क्लियर्ड 6 to 7 एग्जाम्स एज वेल, बट हाँ मिनिमम 4 to 5 आप लेके चलो टू गेट अ गुड जॉब जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एनी डाउट स्टिल हियर अबाउट बोथ द सोसाइटीज? के बारे में दोनों सोसाइटीज के बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने अपने सेमिनार में बता चुका है। अगर आपको फिर से इसके बारे में और जानना है तो आप इंस्टीट्यूट को एक व्हाट्सएप कर देना, दे विल जस्ट शेयर विद यू द सेमिनार वीडियो। तो सेमिनार में हमने IFOA वर्सेस II बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। फर्दर क्लासेस में भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अभी आप पढ़ना शुरू करो, एग्जाम फिल करना होगा समवेयर अराउंड जनवरी-फरवरी, तब कॉल लेंगे। अच्छा, II का एग्ज़ाम कब होगा? II का नेक्स्ट एग्ज़ाम होएगा मार्च
2022 में। IF होएगा कब होएगा? IF होएगा नेक्स्ट एग्जाम होएगा अप्रैल 2022 में। सो ऑलमोस्ट सेम ईयर टाइम है हमारे पास दोनों सोसाइटीज़ के लिए, अभी 6 to 7 months है, विच इज़ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू जस्ट क्लियर दी एग्जाम। और बहुत ईजिली हो जाएगा अगर हम अच्छे से, IFO भी 250 to 300 RC रिकमेंड करते हैं CM1 पढ़ने के लिए, और हम भी इतने रिकमेंड करेंगे। तो अगर हम देखें 6 months है, सो वी आर हैविंग 180 to 200 ऑड डेज, एंड हमें कितने आवर्स पढ़ने हैं? 300 आवर्स। मैं हद मार के ले लूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ रहे हो तो भी 400 आवर्स, तो 200 डेज 400 आवर्स, वेरी इजीली 2 hours पर डे। सो गाइज इफ यू आर गिविंग 2 hours राइट फ्रॉम द स्टार्ट पर डे, देन ट्रस्ट मी दिस इज अ केक फॉर यू। अगर आपके 12th के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं और आप लोग स्टार्टिंग से 1 से 1.5 से 2 घंटे दे रहे हो अपने CM1 को थ्रू आउट योर एग्जाम, देन दिस विल बी अ केक फॉर यू ऑल, then this will be surely be a cakewalk for you all. Any doubts still here? Exam pattern clear, society is clear. चलो अब हम आते हैं हमारे इंडेक्स पे। So how many chapters are there and what all there in the chapters? Let me cover that. So guys, you can quickly see I have opened the index page for you, so you can see I am scrolling down. So there are 28 chapters, but out of these 28 chapters, just cut down the first chapter, data analysis. This is not in your course now. This chapter has been shifted to the CS1 curriculum. हमारा कोर्स स्टार्ट होता है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 हम कब पढ़ेंगे? जस्ट बिफोर आर एग्जाम। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था स्टार्टिंग में कि क्यों करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्टली CT4 का थ्योरी चैप्टर उठ के आया है, इसका थ्रू आउट CM1 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ मॉडल पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स, स्टोकैस्टिक मॉडल्स। तो ये हम जस्ट बिफोर आवर एग्जाम इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे, ताकि हम एग्जाम से पहले इसको आराम से लिख के आ सके। सो बेसिकली हम अपना कोर्स कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज की क्लास में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट करेंगे। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा, कैश फ्लो मॉडल्स क्यों नहीं पढ़ रहे? गाइस कैश फ्लो मॉडल्स में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कैश फ्लो मॉडल्स में लिखा है वो सब कुछ हम आगे वाले चैप्टर्स में स्टार्ट करने वाले। तो CT1 पार्ट गाइस कहाँ से स्टार्ट होता है? CT1 पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 3 एंड एंड्स टिल चैप्टर 14, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, CT1 पार्ट ऑफ CM1। और CT5 पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम चैप्टर 15 टिल चैप्टर 28। ये सारा हमारा CT5 पार्ट है। तो पहले हम अपना CT1 पार्ट खत्म करेंगे, साइड बाय साइड उसका एक्सेल करेंगे, फिर हम CT5 पार्ट स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड उसका एक्सेल करेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश आवर कोर्स मैक्स बाय फेब एंड। फेब एंड तक हमारा आराम से कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम डाउट क्लासेस रखेंगे रेगुलसली और अपने मॉक एग्जाम्स फिल करेंगे। एनी डाउट्स क्लियर गाइस? चलो एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रो ले लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं गाइस। जैसे आपको चैप्टर नेम दिख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंटरेस्टेड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 महीने की कोई इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे वैल्यू करना है, 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे वैल्यू करना है, 1 साल की इन्वेस्टमेंट उसको कैसे वैल्यू करना है। हर एक टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देन डिस्काउंटिंग, एक्यूमुलेटिंग, अगर आज हमारे पास 10 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी, या फिर 10 साल बाद अगर हमें पता है हमें 100 रुपये मिलने हैं, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन देयर आर एन्युइटीज। एन्युइटीज इज दी पेमेंट स्ट्रीम। जैसे अगर हमने एक लोन लिया, जैसे हम लोन के डूज का हमारे पास अलग से चैप्टर है। सपोज इफ़ वी हैव टेकन लोन ऑफ 10 lakhs फॉर अ कार, और आज हमारे पास 2 lakhs है, बचा कितना है? 8 lakhs। तो 8 lakhs में क्या कर सकता हूँ? 8 lakhs या फिर मैं कहीं और से अरेंज कर सकता हूँ, अपने अदर सोर्सेज से, फैमिली रिलेटिव से, या फिर एक बहुत इजी सोर्स है, मैं बैंक से लोन ले लूँ। ऑब्वियसली बैंक विल चेक फॉर माई क्रेडिट हिस्ट्री, बट अगर मुझे वो लोन पास हो जाता है, सो उस 8 lakhs के लिए मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? एनीवन इन द क्लास? व्हाट आई हैव टू गिव टू द बैंक? ऑब्वियसली दे विल चार्ज मी इंस्टॉलमेंट। अब उस इंस्टॉलमेंट के 2 पार्ट्स होंगे, क्या क्या? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। वेरी गुड। सो इंटरेस्ट और कैपिटल। इंटरेस्ट इज समथिंग दैट बैंक विल अर्न एंड कैपिटल इज समथिंग दैट वी आर पेइंग ऑफ अवर लोन। अभी बहुत सारे डिटेल में नहीं जाते, तो मैं आपको जैसे एक इंट्रो दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने CM1 में। सो इस लोन शेड्यूल्स में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल, बॉन्ड्स, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस, अगेन टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे आके हमारा CT1 पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? CT5 पार्ट। CT5 पार्ट इज ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। चलो एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। लाइफ इंश्योरेंस का कोई एग्जाम्पल, एनी टाइप ऑफ पॉलिसी दैट यू नो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वेरी सिंपल, plain vanilla policy. Anyone? Yes.
लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस की भी पॉलिसी का नाम है गाइस टर्म इंश्योरेंस। चलो टर्म इंश्योरेंस समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ, एक 20 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस पकड़ते हैं जिसका सम एश्योर्ड कंपनी क्लेम कर रही है 1 करोड़ हम देंगे, तो 1 करोड़ सम एश्योर्ड कब मिलेगा एक पर्टिकुलर पर्सन को, जब वो पर्सन ड्यूरिंग 20 ईयर्स कभी भी डाई कर जाएगा। तो अगर वो पर्सन ड्यूरिंग 20 ईयर्स कभी भी डाई करेगा तो कंपनी उसको क्या देगी, 1 करोड़ रुपए। अच्छा बदले में तो कुछ लेगी, कंपनी इज नॉट डूइंग सोशल सर्विस, दे विल चार्ज यू समथिंग। सो व्हाट दे विल चार्ज यू, यस वेरी गुड, दे विल चार्ज यू द प्रीमियम्स। प्रीमियम्स वो आपसे लेंगे एंड फॉर प्रीमियम्स दे विल गिव यू अ गारंटी that we will provide you 1 crore if something uncertain happens to you or any of your family member for which you have purchased that term insurance policy. So इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन, क्या प्रीमियम आएगा, कंपनी को कितना पैसा असाइड रखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, अंडर अवर CT5 पार्ट ऑफ CM1. एनी डाउट स्टिल हियर? कुछ भी डाउट है पूछ लो, इसके बाद मैं आपको एक गोल्डन क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ. देयर इज अ गोल्डन क्वेश्चन एवरी टाइम इन द क्लास. What all will be required in all the classes while you are studying the actuarial science course? Guys, every time you need to carry the three things, whether you are attending in the offline format, whether you are attending in the online format. ये तीन चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए. The first thing is your core reading. The second thing is the actuarial tables. इसकी अभी हमें स्टार्टिंग के क्लासेस में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट एज यू गो ऑन आपको पता लगेगा इसमें सारे फॉर्मूलाज, सारी कैलकुलेशंस, ये हमें एक्चुअल टेबल से ही हेल्प मिलेगी इसकी. एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल साइंसेस, साइंटिफिक कैलकुलेटर. गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम जो सारी कैलकुलेशंस करेंगे, अभी 12th नहीं है, आपको कॉपी पेन पे कैलकुलेशंस नहीं करनी, सारी आपकी कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेटर से टेक फॉरवर्ड करनी है और उसी से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी एग्जाम ऑफ एक्चुअल साइंस. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगेन, टू हेल्प यू, यू कैन यूज दिस मॉडल Casio FX82 ES+. यू कैन यूज दिस मॉडल. ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ये यूज़ करना है, आप जाओगे मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट मॉडल दैट यू कैन रेफर फॉर स्टडिंग योर एग्जाम्स. पहले क्या होता था, जब हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, जब हम सेंटर पे जाके एग्जाम देते थे, तो IFO जो एग्जामिनर्स होते थे वो चेक करते थे आप कौन सा कैलकुलेटर लाए हो, तो उनकी जो प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स होती थी, सिर्फ वही कैलकुलेटर्स वो अलाउ करते थे. सो दिस इज़ द बेस्ट अमंग दोज कैलकुलेटर्स. तो अब क्या हो गया, अब एग्जाम हमारा ऑनलाइन फॉर्मेट में है, तो उस तरीके से चेकिंग नहीं हो रही, तो कोई भी कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो. बट हमें नहीं पता, गोइंग फॉरवर्ड एग्जाम्स वापस से हो सकता है ऑफलाइन फॉर्मेट में हो जाए. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज द कैलकुलेटर, यू कैन परचेज दिस कैलकुलेटर. अगर आपके पास है, देन यू कैन जस्ट यूज दैट कैलकुलेटर ओनली. एनी डाउट स्टिल हियर? ओके. Now the next thing that I will discuss is how we are going to study the CM1 throughout our session. So guys, we have designed certain steps that we do follow in our institute ताकि आप लोग वेल वर्स हो जाओ कोर्स से और आपको थ्रू आउट द कोर्स कभी कोई डाउट ना हो. So you can just jot down these steps. First, very important step is you have to attend the class either in online mode, offline mode और the video mode. सो तीनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है, आपकी मर्जी आप किसी भी मोड से अटेंड करो. बट ऑफ वीडियो मोड हम सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जो एट अ टाइम अवेलेबल ना हो. वैसे कौन से बच्चे होते हैं, जैसे सपोज कोई वर्किंग बच्चा है, तो वर्किंग बच्चा हो सकता है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तब हम उनको रिकमेंड करते थे ठीक है आप वीडियो देख के रखो और फिर आप आगे मूव कर सकते हो. बट माई रिकमेंडेशन विल बी ईदर टू अटेंड इन द ऑनलाइन फॉर्मेट और ऑफलाइन फॉर्मेट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो यू हैव टू अटेंड अ पर्टिकुलर चैप्टर्स क्लास इन एनी ऑफ द थ्री मोड्स. The second step will be you have to read the core reading of a particular chapter and practice the back questions.
So what are the back questions? Back questions are those questions that are mentioned at the back of the chapter. उनको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कहते हैं. ये हर एक चैप्टर के एंड में आपको ये गिवन होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. द थर्ड स्टेप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारे दो चीज़ें हो गई. अब हमें थर्ड स्टेप किस पे मूव करना है? वी हैव टू मूव टू समरी लिस्ट्स. नाउ आई विल अगेन explain you this in the detail. What are summary lists? Summary lists are the set of questions which are being asked in the IFOA और II past papers and X series questions. तो होगा क्या? जैसे सपोज हमने चैप्टर 4 चैप्टर 5 रीड करा. चैप्टर 4 चैप्टर 5 हमने रीड कर लिया क्लास में. उसके हमारे डाउट्स डिस्कशन भी हो गए क्लास के टाइम पे और हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए. इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा सर वेयर टू प्रैक्टिस मोर, हम और कहाँ से प्रैक्टिस करें. तो उसके लिए हमने आपको समरी लिस्ट प्रोवाइड करें. समरी लिस्ट में क्या होगा? चैप्टर 4-5 हमने रीड करा, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस IFOA में आ रखे हैं, II में आ रखे हैं, उसकी पूरी लिस्ट हमने आपको इस समरी लिस्ट में गिवन करी है. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 2012. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने पेपर उठाया अप्रैल 14 का. अप्रैल 14 का आपने पेपर उठाया. अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है अप्रैल 14 के पेपर में से चैप्टर 4-5 में कौन से क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं. तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी समरी लिस्ट खोलनी है. चैप्टर 4-5 की समरी लिस्ट जब आप खोलोगे उसमें आपको गिवन होगा कि अप्रैल 14 में क्या कोई क्वेश्चन 4th-5th चैप्टर में से आया है या नहीं आया. अगर आया तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. सिमिलरली फ्रॉम II एंड सिमिलरली फ्रॉम X सीरीज. अब आप पूछोगे X सीरीज क्या है? X सीरीज अगेन इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वाइज. उसमें क्या होगा? जैसे हमने आपको अभी मैंने आपको करिकुलम दिखाया था CM1 का, उसमें उन्होंने कुछ कुछ चैप्टर्स यूनिट वाइज ब्रेक कर रखे हैं. जैसे सपोज चैप्टर 1 से लेकर 8 तक फर्स्ट यूनिट को बिलोंग कर रहे हैं. तो अगर वो फर्स्ट यूनिट को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस किस में होंगे? X1 में. ऐसे सेकंड यूनिट को बिलोंग कर रहे हैं X2, X3, X4, X5 इस तरीके से. तो 5 X सीरीज है आपके इसमें. तो X सीरीज से वाइज क्वेश्चंस भी अब इसमें आपको आएगा. तो इसमें कैसे समरी लिस्ट में हेल्प करेगा? तो चैप्टर 4-5 की अगर आपने कंप्लीट करा तो आप क्या देखोगे? चैप्टर 4-5 के समरी लिस्ट में ये गिवन होगा कौन से क्वेश्चंस X सीरीज में चैप्टर 4-5 के. तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. एनी डाउट्स टिल हियर? Summary list is again the very important part of our steps. The fourth step very important, doubts from the first 3 steps. अब हमने क्या करा? आप लोगों ने क्लास अटेंड कर ली, आप लोगों ने को रीडिंग कर ली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर ली, समरी लिस्ट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए. अब क्या होगा? अब आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे. सर ये डाउट आ रहा है, वो डाउट आ रहा है. तो उसके लिए हम उन चैप्टर्स के लिए एक डाउट क्लास रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आने वाली 2-3 क्लासेस में चैप्टर 4-5 पढ़ेंगे. तो 4-5 पढ़ने के बाद आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, आपने उसके समरी लिस्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. उसके बाद क्या? अब समरी लिस्ट तो आपने प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है बहुत सारे डाउट्स है. तो पहले हम उन चैप्टर 4-5 की डाउट क्लास एक रखेंगे. तो जब आपके चैप्टर 4-5 के पूरे डाउट्स भी खत्म हो गए तब आता है अगेन अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, असाइनमेंट. देन यू हैव टू अटेम्प्ट द असाइनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. अब आपने क्या करा? अब आपने उस चैप्टर की भी असाइनमेंट भी प्रैक्टिस कर ली. नहीं, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ. अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, द लास्ट स्टेप, 6th, यूनिट टेस्ट. अब यूनिट टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कैसे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे थे. चैप्टर वाइज आपने 4-5 के पहले 5 स्टेप्स करे. लेकिन जो यूनिट टेस्ट होगा वो चैप्टर वाइज नहीं होगा. वो हम उस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन उस चैप्टर एक अकेले चैप्टर में से नहीं आता. आने को आ भी सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होगा? वो आपके 4-5 चैप्टर्स टेस्ट करेंगे. तो जिस तरीके से वो 4-5 चैप्टर्स टेस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से हमने अपने यूनिट टेस्ट अरेंज कर रखे हैं. सो इन CM1 वी आर हैविंग 5 यूनिट टेस्ट थ्रू आउट आवर सेशंस. तो 5 यूनिट टेस्ट मतलब पहला जो यूनिट टेस्ट है सपोज चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9. तो जैसे ही हमारे चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9 के 5 स्टेप्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आप क्या लोग अटेम्प्ट करोगे? यूनिट टेस्ट. अब आप क्या होगे? ठीक है सर आपने ये सब बताया, हम क्लास अटेंड कर लेंगे, समरी लिस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे, यूनिट टेस्ट भी दे देंगे, लेकिन इसका स्केड्यूल क्या रहेगा? तो गाइस इन सारी चीज़ों का जो अप्रैल तक हमारा चीज़ें चलेगी उसका आपको स्केड्यूल भी प्रोवाइड करा जाएगा कि आपकी इस डेट तक हमारे पास असाइनमेंट आ जानी चाहिए, इस डेट को आपका इस यूनिट टेस्ट होगा और कहाँ तक जो लास्ट में आपका मॉक टेस्ट होना है. इन सब स्टेप्स के बाद आपका जब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उससे 1 और 2 वीक्स पहले आपका पूरा मॉक टेस्ट होगा इन द एग्ज़ाम पैटर्न.
तो उसकी भी आपके पास डेट्स पहले से ही आ जाएंगी कि हमारा मॉक टेस्ट भी कब होना है। तो ये सारी चीज़ों का स्केड्यूल आपको पहले से ही मिल जाएगा, सो नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट। एनी डाउट स्टिल हियर, यू कैन आस्क मी। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहला। सो दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू फॉलो थ्रू आउट अवर सेशन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टिल हियर, you can ask me, otherwise I will proceed. You can note down these steps will be following throughout our session. Okay, so guys, today we are going to start with the first topic of our CM1, that is the time value of money. Any idea what do you understand by this topic? What do you mean by the topic name time value of money? टॉपिक के नाम से हमें आधा समझ आ रहा है। चलो, लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर नेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ सपोज आप लोगों ने सब ने, यू हैव जस्ट पास्ड योर क्लास 12th एंड ऑलमोस्ट सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तभी वी आर लैंडेड अप इनटू दिस स्ट्रीम एक्चुअल साइंस। सो सपोज टू रिवॉर्ड यू गाइज योर पेरेंट्स हैव गिव यू द 20,000 लमसम। आपके सबके पेरेंट्स ने, आप लोगों ने अच्छा मार्क्स स्कोर करे, एज अ गिफ्ट आपको 20,000 लमसम दिया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो मिला ही नहीं। देखो, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिले हैं, हमें तो कार मिली है, हमें तो बाइक्स मिली है, हमें तो फ़ोन्स मिले हैं। तो ठीक है, हम इसको एक ईजी करने के लिए एक कैश रिवॉर्ड की तरह समझते हैं। 20,000 हमें मिला। सो 20,000 जब हमें मिला, अब हमें देखना है उस 20,000 को हमें यूज़ कैसे करना है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज दिस। Either you can just put that 20,000 into your piggy bank, either you can just purchase something, or another way is you can just put that into a bank account, you can just purchase some shares with that. हो सकता है किसी को भी शेयर्स ट्रेडिंग की नॉलेज इतनी ना हो, तो मल्टीपल वेज 20,000 को यूज़ करने के लिए। लेकिन इन सारे केसेस को अगर हम कंपेयर करें और एक केस ये कंपेयर करें, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, और सिर्फ दो केस पकड़ते हैं। फर्स्ट केस में आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, सेकेंड केस में आपने सिर्फ पिगी बैंक में डाला। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स जब मैं वापस से वो पिगी बैंक निकालूंगा, तो और जो मैंने 20,000 डिपॉजिट कराए होंगे, क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी? एंड सिमिलरली वर्सेस जो मैंने 20,000 अपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ी होगी? ऑब्वियसली जो मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उसमें मैं इंटरेस्ट अचीव करूंगा हर साल के हिसाब से। 10 साल बाद जब मैं देखूंगा तो ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू हो सकता है डबल हो गई हो। आई एम नॉट कहेंगे होएगी, अब डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, डबल हो गया 10 ईयर्स बाद, सो 40,000। अब लेकिन जिस पर्सन ने पिगी बैंक में करे थे, तो क्या पिगी बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट देने वाला है? ऑब्वियसली नॉट। तो वो 20,000 के 20,000 ही रहेंगे। तो 20 ईयर्स बाद भी उसकी वैल्यू कितनी रही? 20,000। अब आप क्या होगा, ठीक है, नुकसान क्या है? 20,000 थे, हमारे 20,000 ही रह गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं 20 के 40 हो गए, तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन 20 के अगर 20 भी रहे, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? एनीवन, एनी आंसर्स? सो देयर विल बी एनी लॉस और नॉट? अगर हम पिगी बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो क्या कुछ लॉस है? दिखने में तो नहीं लग रहा है। 20,000 पहले थे, 10 ईयर्स बाद भी 20,000 है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? बेटा है नुकसान। आज की डेट में जो आप 20,000 से परचेज कर पा रहे हो, क्या 10 ईयर्स डाउन द लाइन भी आप वही सेम एसेट उन्हीं 20,000 से परचेज कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। अगर हम आज की डेट में नॉर्मल एक स्मार्टफोन भी सोचें कि अगर हमारा 20,000 का एक स्मार्टफोन आ रहा है, अगर हम 10 ईयर्स बाद जाएं, तो क्या वही सेम स्मार्टफोन, ऑब्वियसली सेम मतलब उसी टेक्नोलॉजी का उसी तरीके से क्या हम परचेज कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। वो भी इन्फ्लेट करेगा। इसको क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगेन ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे चेंज हुई कि वही 20,000 से जो आज मैं टाइम जीरो पे परचेज कर पा रहा था, अगर मैं उसको पिगी बैंक में डिपॉजिट करके रखूँ, मैं वही सेम एसेट उन्हीं 20,000 से 10 ईयर्स बाद नहीं परचेज कर पाऊंगा। तो मिनिमम हम क्या कर सकते थे? मिनिमम उस 20,000 को एटलीस्ट बैंक में डिपॉजिट कराते थे, ताकि जब वो इंक्रीज़ हुआ तो 40,000 जब हमारे वो हो गए, तो हो सकता है उस 40,000 से आराम से हम उससे परचेज कर पाते। हो सकता है 42 उसकी वैल्यू हो जाती, हो सकता है 38 हो जाती, दैट इज़ डिबेटेबल। बट मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
फर्स्ट चैप्टर में हम यही सब देखने वाले हैं कि कैसे हमारे टाइम के हिसाब से वैल्यू चेंज होएगी डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. व्हाट आर दोज टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस एज वेल. क्लास 11-12 में हमने देखा था देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. वन इज सिंपल इंटरेस्ट, द अदर इज compound interest. What is the difference between the two? Guys, again, you can use the chat section to answer. What do you mean by simple interest? What do you mean by compound interest? कैसे दोनों different है? Again, उन्हीं 20,000 का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमें 20,000 मिले आज हमारे पेरेंट्स से कैश रिवॉर्ड की फॉर्म में, तो वो 20,000 अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में डिपॉजिट कराएं और कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में डिपॉजिट कराएं, कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा वो. टेक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ एज 10%. हम दोनों को 10% ले लेते. नाउ ट्राई टू आंसर कैसे चेंज होगा हमारा कैश फ्लो पैटर्न. सो व्हाट आई एम सेइंग, 20,000 हमें कैश रिवॉर्ड मिला. अब हमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में इस 20,000 की वैल्यू कैसे चेंज होगी. एंड वी आर टेकिंग बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज 10%. दोनों को हम 10% मान के चल रहे हैं. ठीक है, हम पहले ईयर 1 में देखते हैं. ईयर 1 में हमें 10% अगर इंटरेस्ट मिला तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000. यहाँ पे कितना मिलेगा 2,000. तो हमने देखा फर्स्ट ईयर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, बेशक हम सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में इन्वेस्ट करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में सेंस करें. लेकिन ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में सिंपल इंटरेस्ट पे अभी भी 2,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, आप ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा ये चीज़. सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल विल नॉट गेट चेंज्ड. तो जो 10% था वो 10% अभी भी 20,000 पे ही मिलेगा जो ईयर 1 में मिल रहा था, सेम इन ईयर 2 में एंड सेम ईयर 3, ईयर 4 एंड सो ऑन. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अब हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. प्रिंसिपल कैसे चेंज होगा, लमसम मैंने 20,000 डाला था टाइम 0 पे, टाइम 1 पे, अब वो मेरा लमसम चेंज होकर प्रिंसिपल चेंज होकर कितना बन जाएगा 22,000. अब मुझे जो 10% मिलेगा वो मुझे 20,000 पे नहीं मिलेगा, वो मुझे किस पे मिलेगा 22,000 पे. सो द इंटरेस्ट दैट विल आई अर्न इज 2,200. तो नेक्स्ट ईयर मेरा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 22,000 प्लस 2,200. इस तरीके से मेरा प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा और मेरी वैल्यू बढ़ती रहेगी. सो विच मेथड इज़ बेटर टू गेन द इंटरेस्ट. अगर हमें 10% ही इंटरेस्ट मिलना है तो कौन सा तरीका बेटर है, और कोई लाइव एग्जाम्पल दे सकता है इसका. अगेन यू कैन यूज द चैट सेक्शन टू गिव योर आंसर्स. कि एक लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रियल लाइफ में. चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. नाउ सपोज इन अ बैंक वी हैव डिपॉजिटेड द 20,000. अब बैंक हमें दो ऑप्शंस देता है. बैंक कहते हैं या तो आप अपना इंटरेस्ट एक्रू करते रहो. एक्रू करने का क्या मतलब है कि आप अपना इंटरेस्ट निकालोगे नहीं ईयर एंड पे, आप हमारे पास ही अपने इंटरेस्ट को दोबारा डिपॉजिट करा दोगे और फिर हम आपको उस पर भी इंटरेस्ट देंगे. दिस इज़ वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज बैंक कह रहे हैं ठीक है आपका ईयर 1 के बाद जो भी इंटरेस्ट रेट होगा आप उसको विड्रॉ करा लो और फिर ईयर 2 पे विड्रॉ करा लो. जितने साल का आपका टर्म है, सपोज 10 ईयर्स का हमारा टर्म था, तो हर साल आप अपना इंटरेस्ट निकालते रहो. तो ईयर 10 पे हमें क्या मिल जाएगा, ईयर 10 पे हमें अपना 20,000 भी वापस मिल जाएगा और उस ईयर का इंटरेस्ट कितना 10% इंटरेस्ट दैट इज 2,000 अगेन वापस मिल जाएगा. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो लमसम है, जो हमारा प्रिंसिपल है 20,000 का, वो हर साल कांस्टेंट ही रह रहा है 20,000, और जो हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं 2,000 2,000 2,000 वो हम हर साल में विड्रॉ करवाई जा रहे हैं. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, ईयर 1 पे मेरा इंटरेस्ट कितना मिला 2,000, तो मैंने उसको विड्रॉ नहीं करवाया, मैंने क्या बोला बैंक को मैं इसको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो अब मेरा प्रिंसिपल चेंज होकर क्या हो गया 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000. तो बैंक ने बोला ठीक है अब आपने विड्रॉ नहीं कराया, जो हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे वो हम आपको 20,000 पे नहीं देंगे, अब हम आपको 22,000 पे देंगे. सिमिलरली उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, हमें 2,200 इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा लमसम चेंज होकर प्रिंसिपल चेंज होकर क्या हो जाएगा 24,200, और इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे. अब आप बोलोगे ठीक है ये सब समझ आ गया, लेकिन
क्या हमने CM1 में ये सब सीखना है? नहीं. सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट. ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो. तो अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं सिंपल इंटरेस्ट का एक मुझे फॉर्मूला फ्रेम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सो सिंपल फॉर्मूला दैट यू कैन फ्रेम फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज C into 1 plus NI, and for compound interest it will be C into 1 plus I raised to power n. Very simple, where C belongs for the initial principal or the initial capital, the initial principal. Here again C depends for that only. N stands for the term of the investment, and I stands for इंटरेस्ट रेट. अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस आई स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस आई स्टैंड्स फॉर द सिंपल इंटरेस्ट रेट. तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे. एनी डाउट्स से ले, एनी डाउट्स? सबको क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? किसी को डाउट तो नहीं है? आप चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई विल डिस्प्ले वन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम डिस्प्लेइंग ऑन माई स्क्रीन. क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आई एम डेलिबरेटली हाइडिंग द सॉल्यूशन. जिनके पास कोर रीडिंग अवेलेबल है, guys, don't try to look at the solution. Throughout this session you will see me dictating each and every line again and again, that कि अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपका ही लॉस है. कभी आप किसी भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक रामबाण क्या है एक्चुअल साइंस में. गाइस, चाहे आपको एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाए, वेदर इट विल टेक यू हाफ आवर टू सॉल्व जस्ट वन क्वेश्चन, डोंट गो टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पे नहीं जाना हमें. सॉल्यूशन पे गए तो समझो वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया. सॉल्यूशन देख के समझ के क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, बट इट विल नॉट स्टिल इन योर माइंड. इफ़ यू वांट फॉर एनी कॉन्सेप्ट टू स्टिल इन योर माइंड, उसके लिए आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है. ओके, नाउ कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन. An investor deposits 10,000 in a bank account that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Calculate the accumulated value of the deposit after 3 years. We will also understand one important thing, how to make a timeline. Timeline भी बनाना सीखेंगे, और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर भी दो क्विकली in not more than 5 minutes. You can use the chat section to answer. So the question was very simple. 10,000 हम डिपॉजिट करवा रहे हैं एक बैंक अकाउंट में विच इज़ प्रोवाइडिंग अस 5% सिंपल इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस डिपॉजिट आफ्टर 3 years. गाइस, वेरी सिंपल. अगर मैं इसको नॉर्मल कॉपी पेन पे नहीं भी सॉल्व करूँ तो भी इसका आंसर मैं दे सकता हूँ. हाउ? 5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 पे, एंड वी आर डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट फॉर द 3 years. तो फर्स्ट ईयर की एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% ऑफ 10,000 दैट इज 500. अगेन ईयर 2 पे कितना मिलेगा? 500. ईयर 3 पे कितना मिलेगा? 500. इंटरेस्ट सेम क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा. सो टोटल इंटरेस्ट दैट आई हैव अर्नड इज 500 into 3, दैट इज 1500. सो टोटल हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब हम समझते हैं टर्म को. सो लेट मी जस्ट ओपन माई नोटबुक. सो गाइस, what is the timeline? This is the timeline of this question. 0, 3. मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ? टाइम 0 पे आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 एंड आई नीड टू कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू. हमेशा ध्यान रखना, जब मेरा एरो इस तरफ आएगा, वी आर कैलकुलेटिंग द accumulated value. What do you mean by accumulated value? Something we are accumulating at a particular rate of interest. So here we are accumulating 10,000 at what rate of interest? 5 rate of interest. Simple. So formula wise करें तो कैसे कर सकते हैं? C into 1 plus NI. Here C is 10,000, 1 plus term is 3, I is, what is I? I is 5%. So guys, गलती मत करना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई मत करना. अगर 5 से करना है so you need to write it 5/100. So total कितना हो जाएगा? ये total will be 11,500. Guys, start using your scientific calculators as well. अगर आप लोगों के पास है, start using it. In the coming classes we will keep one class to understand that as well.
द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग दिस एज योर फर्स्ट एग्जाम, आई नो आप में से कुछ लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना नहीं आता होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दैट एज वेल. एनी डाउट्स 11500 कैसे आया? सो गाइज यहाँ पे अभी हमने तीन चीज़ें सीखी, हाउ टू मेक अ टाइम लाइन, what do you mean by accumulated value, and how to calculate the value for the simple interest thing. So again I am repeating, 10,000 हमने जीरो पे इन्वेस्ट करा, we need to calculate the accumulated value at time 3, that's why I have made this arrow. So time 3 पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई? 11,500. I hope this question is clear to you all. Okay, now let us go to different question. Try to solve this now. Guys, further 5 minutes, try to solve this. Now here an investor is depositing 5,000 into a savings account that pays 10% simple interest at the end of each year. Compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 6 years or invested for 3 years, then immediately reinvested for a further 3 years. So let me hide the solution. So there are two parts to the question. You no need to give more than 3 minutes to each part. Very simple. यहाँ पे अब हम दो टाइमलाइन बनाएंगे, पार्ट 1 के लिए अलग, पार्ट 2 के लिए अलग, एंड देन वी विल ट्राई टू कंपेयर कि दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आने चाहिए. Quickly try it. So read question very carefully, try to make the timeline. So guys, आप लोगों को लगेगा हम टाइमलाइन क्यों बना रहे हैं, इन क्वेश्चंस को तो बिना टाइमलाइन के भी हो जाएगा. आई नो दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड दीज कैन बी डन without the formation of the timeline, but again as we proceed I need you guys to make it a habit to draw a timeline, क्योंकि आगे वाले questions में आपको बहुत हेल्प होगी टाइमलाइन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की. सो आई नो इन क्वेश्चंस को बिना टाइमलाइन से कर सकते हो, बट ट्राई टू मेक इट. It will hardly take 10 to 15 seconds to make a timeline. So draw the timelines on your notebook and then try to solve the question. Even if the straightforward formula is to be applied here. Again, very simple question. An investor deposits 5,000 into savings account that pays 10% simple interest. So आपको वैल्यू निकालनी है आफ्टर 6 years in the first part and the break portion 3 years and after that 3 years again. Okay, before solving, let me interrupt you guys. Anyone in the class who can tell me whether the answers for part 2 and part 1 will be same or different without solving? Anyone in the class who can answer this? अभी हमने एक important aspect पढ़ा था simple interest का, that the principal doesn't change in simple interest.
तो फर्स्ट पार्ट में जब हम 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो थ्रू आउट 6 ईयर्स क्या मेरा प्रिंसिपल चेंज होगा? नो, माई प्रिंसिपल विल नॉट गेट चेंज्ड। प्रिंसिपल मेरा वही रहेगा पूरे 6 ईयर्स में। लेकिन जब पार्ट 2 में मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स देन इमीजिएटली री इन्वेस्टेड फॉर फर्दर 3 ईयर्स, क्या यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल चेंज होगा? हाँ होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अभी तक मैं 5000 इन्वेस्ट कर रहा था, 10% उसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% मतलब 500 फॉर ईच ईयर, तो ईयर 3 पे जाके मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6500। लेकिन अगर मैं पार्ट 1 के हिसाब से देखूँ तो 4th ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना होता? 4th ईयर के लिए भी मेरा प्रिंसिपल 5000 रहता है। लेकिन जब मैं सेकेंड पार्ट से सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 5000 एज प्रिंसिपल फॉर द 4th ईयर, I will have 6500 as the principal for the 4th year. So my principal will change. That's why answers for part 1 and part 2 will definitely going to not match. So guys, इस तरीके से हमें सोचना है एक्चुअल में। अभी तक हमारा एक्चुअल का ऐसा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। हम ये आप लोग जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं। सो दे हैव स्टार्टेड द CM1 करिकुलम विद अ वेरी बेसिक थिंग्स। तो आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पेसअप करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस नाउ विद द हेल्प ऑफ ए टाइमलाइन। लेट मी क्रिएट अ न्यू शीट। Okay, let me write in it. So what was the sum assured in year 0? So the sum assured was 5000 and we need to calculate the accumulated value. Again, arrow in this portion. We need to calculate the accumulated value at time 6. And what is the simple interest given to me? It is 10% per annum. So what will be the formula again? 5000 into 1 plus 6 years into 10%. What will be the answer? Very easy, 8000. लेकिन सेकेंड पार्ट की क्या टाइमलाइन होगी? एनीवन? सो गाइस, सेकेंड पार्ट के लिए वी हैव टू ब्रेक अवर टाइमलाइन। सो देयर विल बी वन मोर टाइम 3. व्हाई आई पुट दिस 3 इन द मिडिल? बिकॉज टाइम 3 पे वो पर्सन दोबारा अपना सारा पैसा री इन्वेस्ट कर रहा है। तो टाइम 0 पे उसके पास कितना था? 5000 उसने इन्वेस्ट करा टाइम 0 पे। टाइम 3 पे उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? सो टाइम 3 पे उसकी वैल्यू बन जाएगी 6500। कैसे बनी? 5000 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10%. सो दिस विल गिव मी 6500. नाउ अगेन एट टाइम 3 आई एम री इन्वेस्टिंग दिस 6500 and I will get 10% again. So what will be 10% of 6500? Without calculator again you can do it. It will be 650 and the 650 interest कितनी बार मिलना है? 3 बार और मिलना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? Anyone in the chat section quickly. What will be the final answer? So 650 into 3 कितना होगा? 650 into 3 will be 1950. 1950 plus how much? 6500. It will give you 8450. It will give you 8450. So see, in the book as well, in the first part it will give you 8000 and then it will give you 8450. Okay guys, let us just quickly revise what all we had studied till now. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है जल्दी से एक बार देख लेते हैं। So अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं। पहले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा कैसे हमारा आंसर चेंज होगा अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 6 साल के लिए रहने देते हैं। इस 6 साल को इन्वेस्टमेंट रहने देने का मतलब क्या हुआ? हर साल मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट विड्रॉ करवाई जा रहा था। लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ? मैंने 3 साल तक इंटरेस्ट विड्रॉ करवाया, लेकिन थर्ड ईयर के एंड पे मैंने वो सारा इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अगेन री इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द
second part and the first part. So I am giving you 30 seconds break. किसी को कोई doubt है you can ask me. Then we will proceed 1 or 2 questions for the compound interest. ओके नाउ गाइस ट्राई टू डू द सेम क्वेश्चन जो हमने सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा था, जिसमें हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे बैंक अकाउंट में और हमें 5% मिल रहा था एंड हम अपनी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल रहे थे आफ्टर 3 years. ट्राई टू डू द सेम क्वेश्चन बट दिस टाइम यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. नाउ यू हैव टू यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. So we were discussing 10,000 question in which we were having compound interest at 5% rate of interest, which is deposited for 3 years. Anyone with the answer? You just need to apply the simple formula guys, the simple formula जो हमने पढ़ा था अभी compound interest के लिए, C into 1 plus I raised to power n. Anyone with the answer? Yes, right answer. Right answer from few students. It will be 11,576.25. Very good students. So few students have solved it. It is the right answer. Let me show you how to solve this. Let me share my screen again with you. Just give me few seconds. Okay, so guys, here you can see, I will just highlight this now. You can just look at my screen now. So 500 will be the interest in the first year. Now in the second year, the 5% interest will be on 10,500, which will be 525, and in the third year it will be 5% interest on 11,025, which is 551. If we sum up all these, it will become be 11,576.25. Again, इतना सब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. We could have just directly applied this formula C into 1 plus I raised to power n. So which will be 10,000 into 1 plus 1.05 raised to power 3, which will comes up to be 11,576.25. Any doubt still here guys? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो हमने 5,000 इन्वेस्ट करे थे 6 years के लिए और 5,000 2 साल में ब्रेक करा था 3 years और 3 years, उसके लिए हम ये दोबारा केस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए समझेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम रश करें कोर्स को. हमारा मोटिव ये है जितना हम समझे उसको बहुत डिटेल में समझें. तो आज की फर्स्ट क्लास में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को नहीं समझाना चाह रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो एक क्वेश्चन और करेंगे ये वाला, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस. सो ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली गाइस, very carefully. So question is saying an investor is deposit, the same language, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, पहले हमारा 10% सिंपल इंटरेस्ट था, अब हमारा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट. अगेन माई क्वेश्चन विल रिमेन सेम. बिफोर सॉल्विंग, ट्राई टू गिव द आंसर इन द चैट सेक्शन दैट
if this sum is invested for 6 years and if this sum is breaked up 3 years, तो क्या आंसर हमारा डिफरेंट आने वाला है? क्विकली ट्राई टू आंसर दिस. क्या हमारा आंसर डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? पहले ये आंसर करो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. सोच के देखो. मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बताया था? क्या हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है हर ईयर के लिए? बिल्कुल होता है. तो जब एक पर्सन 5000 इन्वेस्ट करेगा 6 ईयर्स के लिए, तो तब भी उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा और उसका प्रिंसिपल हर ईयर के लिए चेंज होगा. और जब वो 3 ईयर्स का ब्रेक लगाएगा, नाउ सपोज 5000 उसने इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए, अब वो इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट कर रहा है. तो 3 साल के लिए जब उसने इन्वेस्ट करा, तो जो उसका अमाउंट 3 साल बाद हो गया होगा, उसको उसने उस दिन निकाला और दोबारा डाल दिया, और फिर 3 साल के लिए उसने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहा. तो क्या हमारा आंसर डिफरेंट आना चाहिए? यस, वेरी गुड. बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आना चाहिए. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में चाहे आप 6 साल के लिए रखो, चाहे 3 साल के लिए रखो, 3 साल के लिए निकालो, फिर 3 साल के लिए रखो, मीन्स 6 ईयर्स कंटिन्यूस, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट करा, निकाला और फिर सेम डे डाल दिया. दोनों केस में आंसर सेम आएगा. आप 3 साल की बात कर रहे हो, आप इसको 6 बार डिवाइड कर लो कि 1 साल के लिए करा, फिर निकाला उसी दिन डाल दिया, फिर अगले साल निकाला उसी दिन डाल दिया, फिर अगले साल निकाला उसी दिन डाल दिया. अगर आप इसको 6 टाइम्स ब्रेक करोगे तो भी हमारा आंसर सेम आने वाला है. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे समझने के लिए? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. बट बिफोर दैट, क्विकली गिव मी द कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्विकली, व्हाट विल बी द आंसर फॉर बोथ द पार्ट्स? आंसर विल बी सेम. वो सबको समझ आ गया? कैसे सेम होगा? नहीं समझ आया? यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन. व्हाट्स द डाउट? We will extensively using the chat section throughout our sessions. So what will be the answer? If an investor is depositing 5000 that pays 10% compound interest, what will be the sum assured after 6 years in the first part and 3 years again reinvested for 3 years? What will be the answer for this part? Quickly give me. Okay guys, again we will first try to make the timeline. So guys, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, टाइमलाइन अगेन ऐसा नहीं है टाइमलाइन नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं होएगा, बट मेक इट अ हैबिट टू मेक टाइमलाइन एवरी टाइम यू सॉल्व अ क्वेश्चन, एटलीस्ट इन द initial classes. So what was my initial capital? My initial capital was 5000. So 5000 was my initial capital. I need to calculate the accumulated value after 6 years in the first part, and in the second part what I have to do is 0, 3, 6. So I am investing 5000 at time 0, at time 3. पहले मुझे accumulate करना है और फिर 3 से 6 तक मुझे एक्यूमुलेट करना है. सो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6, दैट इज 5000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 6, एंड इसकी क्या बनेगी? 5000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 3. पहले 3 साल के लिए करा, एंड फॉर अगले 3 साल के लिए 5000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 3. ये मैंने यहीं से उठा लिया गाइस. तो 3 साल बाद सपोज मेरी ये वैल्यू आई, दिस इंटू अगेन 1.1 रेज टू पावर 3. तो गाइस कोई डिफरेंस आएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगेन 5000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 6? तो क्या कुछ डिफरेंस आने वाला है? नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला. तो आई विल शो यू द आंसर नाउ. सो दिस इज द फाइनल थिंग, 5000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 6, दैट इज 8858. अब अगर हम पहले 3 साल के लिए करें 6655 और उसके बाद अगेन 3 सालों के लिए करें, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, दैट इज 8858. Guys, any doubt still here? Very simple. We are going really very slow in the initial classes. We will pace up from next classes. Don't worry about that. So, any doubt still here? Then I will give you the suggestions for the upcoming diet, how you have to proceed before the previous classes. Okay, I suppose अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत इजी है और आप लोग इसको पहले से पढ़ के आ चुके हो. ठीक है, आप लोगों का रिवाइज हो गया होगा. गाइस, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स नाउ? अब हमें क्या करना है? सो दीज सेशंस विल बी गोइंग ऑन, लाइव सेशंस चलते रहेंगे. बट मेरा क्या सजेशन है आप लोगों को गाइस, अभी हमारा चल रहा है अगस्त, तो आप लोगों में से सब ने 12th, मोस्टली 12th अभी करके आए हैं. तो मेरा क्या सजेशन रहेगा गाइस, हम ऑलरेडी
कोविड की वजह से एक डाइट मिस कर चुके हैं। अदरवाइज जो पहले 12th क्लास के स्टूडेंट्स आते थे वो फर्स्ट डाइट कौन सा देते थे, सितंबर वाला, लेकिन अब आप सबके लिए फर्स्ट डाइट कौन सा होने वाला है, सीधा अप्रैल वाला। सो गाइज माय सजेशन टू यू इज यूटिलाइज दिस टाइम। अब हमारा एग्जाम सीधा अप्रैल में होना है। अब ऐसा नहीं जिस पेस पे हम क्लास में चलेंगे आपको उसी पेस पे चलना है, नहीं, यू नीड टू रियली पेसअप। अब आप बोलोगे पेसअप कैसे कर सकते हैं गाइस, इसीलिए हमने पूरे करिकुलम की वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई है। तो आप लोग क्या करो, अपने आप को स्पीड अप करो। आप चैप्टर 4, 5, 6, 7 इसके हिसाब से प्रोसीड करते रहो, अपने डाउट्स नोट करके रखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो 6 स्टेप्स फॉलो करो, जहाँ जहाँ दिक्कत आए उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको हमें मेल कर सकते हो टू ऑन आवर ऑफिशियल ID दैट इज theacademicjunction@gmail.com। उस पर आप अपने मेल्स क्यूमुलेट करके रख सकते हो। जितना आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे गाइस उतने अपने चांसेस बढ़ाओगे एग्जाम को पास होने के। और ऐसा भी नहीं, काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने 2 एग्जाम्स पहले से पिक करके रख लिए, लाइक CM1 एंड CB2 और CS1 एंड CB2 और CS1 एंड CM1। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक और सब्जेक्ट पिक कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट भी पिक करा है तो उस पर अपना 100% आज से देना शुरू कर दो। अब हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि जब हमारा अगले लाइव सेशन का मैसेज आएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं करोगे। आप लोग अपना वीडियो से प्रोसीड करते रहो, आगे पढ़ते रहो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएँ, जब हम सेम चीज़ की लाइव क्लास ले रहे होंगे, तब आपके सारी चीज़ें टिप्स पे और आपको पता हो कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज़ माई सजेशन टू यू। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मुझे पता है अभी आप 12th से आए हो, ठीक है सर तो बोलते रहेंगे, हमें क्या है, देखेंगे जितना पढ़ना है, लेकिन गाइस इट विल हेल्प यू, रियली हेल्प यू। पहले से ही अगर आप लाइव क्लासेस देख के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन क्लासेस में। से होगा क्या, आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी रेज अप कर पाओगे, और जो टॉपिक्स आपको वीडियोस देखते वक्त थोड़े से अनक्लियर होंगे तो लाइव क्लासेस में पूरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये फ़ायदा है पहले से वीडियोस देख के आने का। सो गाइस माय ओनली सजेशन इज एंड माय ओनली रिक्वेस्ट इज यूटिलाइज योर टाइम एज अ स्टूडेंट, यूटिलाइज योर टाइम। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज से आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है एक्चुअल की। फॉर नेक्स्ट 3 years सब कुछ भूल जाओ, अपने कॉलेज पे कंसंट्रेट करो, अपने एक्चुअल एग्जाम्स पे कंसंट्रेट करो, एंड एटलीस्ट ट्राई टू क्लियर 4 to 5 एग्जाम्स इन योर ग्रेजुएशन। 4 to 5 एग्जाम्स इज अ मस्ट, और हो जाएगा आराम से, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। आप ये समझो आपके पास मोटे मोटे 5 सेमेस्टर्स है, और हर एक सेमेस्टर में अगर हम एफिशिएंटली टाइम यूटिलाइज करके अपने आप को देंगे और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर होता जाएगा। एंड फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों के और पुश करना है। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंगली कम सेमेस्टर्स रह गए। तो आप लोगों ने 1 साल लेट स्टार्ट करा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्टार्टअप जब मर्जी करो, लेकिन आपको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। और दोज हु हैव ऑलरेडी डन विद देयर ग्रेजुएशन, आपको तो और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्या एम होना चाहिए, हम जल्दी से 2-3 एग्जाम्स निकालें और फिर जॉब सर्च में स्टार्ट करें। ये सब बातें हम अपनी आने वाली क्लासेस में भी करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। प्राइमरी एम इज CM1, इसके अलावा सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। ओके देन, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स फॉर टुडेज क्लास। अगर और कोई डाउट हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन द इंस्टीट्यूट नंबर, यू कैन मेल अस, you can reach out to me. Okay, so that's it for today. We'll continue in the next class.